Hello, it is January the 9th and I am Jagjit welcoming you all to the 32nd episode of Weekly Takes from New York. We'll start today's episode with news of USA and we have a lot to talk about. I'm excited and then we move over to our segment of some little known but unknown facts about New York City. From there, we'll travel to India to discuss some important news, an analysis of the farmers' protest from a new angle, how it all began and what stage is it now, and an update on Sushant Singh Rajput murder mystery. And then we'll talk about the history of Kashmir, the heaven on earth, and learn facts skipped by our own historians. And last but not the least, we'll talk about the happenings within the Congress party and its future in the present circumstances. But before we begin, I must thank you all for liking my program. Even the last episode was watched by over 15,000 viewers, which has been going on since the last so many episodes. More and more of you are subscribing, and those of you who have not till now, press the subscribe button and also the bell icon to get informed about the next episode at the earliest. Let's just do it. Namaste, Sat Sri Akal, Adab, Vanakkam. This is Jagjit bringing you the weekly takes from New York today morning when the mercury reads -3 degrees Celsius. Let's begin. News of USA. And after a very long wait, President-elect Joe Biden's victory was finally certified by the House and the Senate on January the 6th. But the scene which preceded it will go down in the history of America and the democratic world as a black day. The world witnessed people entering the Capitol building forcibly in the name of democratic protest. It is better to forget such an incident and move forward as the new government has a lot on its plate, beginning with the fight with Corona. Let us not give the world a chance to laugh at us. But as a political scientist, I have some takes from this chaotic incident which America must realize and act upon. Number one, we must acknowledge that our country is divided. Number two, a nationwide debate must be carried out among people from all ethnicities and intellectuals coming together to find ways and means to bridge the gap. Up till now, we have done band-aids and we do realize that it does not work. Number three, our institutions need to be strengthened as it has lost the faith of many people. Number four, rule of law must be the same for all. All lives, whether black, brown or white, must be treated the same way. But all this cannot happen in a day. But all stakeholders must be brought in to find ways and means to assuage the feelings of all. Nobody must be allowed to feel secluded. Democracy is a process and it is still evolving, and in it there happens to be bumps and speed breakers. I would just pray to God, bless America. Now moving over to our section of some interesting, known but unknown facts about New York City. Did you know that New York is home to the tallest building in the Western Hemisphere, One World Trade Center? The building has 104 floors and its top reaches a staggering 1,776 feet, which is also, by the way, the year of US independence. The building was recently completed in 2014. During its planning stages, the building was also referred and known popularly as the Freedom Tower. Did you know that after the Brooklyn Bridge was completed and opened for the public to use, 21 elephants, 7 camels and 10 dromedaries, basically furry camels,
cross the bridge to demonstrate that the bridge was safe and ready for use. And friends, here I have a question for you. Why was this elephant stunt performed? Write your answers in the comment box. Do participate. Share your knowledge, and you will have a special mention coming up in the next episode. अब चले भारत की ओर। पहले कुछ मुख्य समाचार। किसान आंदोलन। नए कृषि कानूनों द न्यू फार्म लॉज को लेकर सरकार और किसानों के बीच का गतिरोध 8वें दौर की बातचीत में भी खत्म नहीं हो पाया। फ्राइडे को हुई 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा खत्म हो चुकी है। अब 15 जनवरी को फिर बातचीत होगी और बीच में 11 जनवरी को किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई भी होनी है। बातचीत के दौरान किसानों के तेवर काफी कड़े थे। किसानों का साफ कहना है कि जब कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। बहरहाल सरकार ने भी यह कह दिया है कि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। याद रहे, जब आंदोलन शुरू हुआ था तब किसानों की 3 मांगे थी। 1, एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। नंबर 2, मंडी चालू रहेगी और किसानों को इन केस ऑफ डिस्प्यूट विद कॉर्पोरेट्स कोर्ट जाने का हक होगा। सरकार ने ये सभी मांगे मान ली। फिर किसान नेताओं की डिमांड्स बदल गई और यह नारा लग गया कि काले कानून वापस लो। आफ्टर ऑल, वी आर सो डीपली एंट्रेंच्ड विद द व्हाइट मैन सिंड्रोम दैट वी वांट द 150-year ओल्ड गोरे आदमी का कानून और अपना संशोधित कानून, काला कानून वापस लो। दरअसल यह आंदोलन कोई भी अपोजिशन पार्टी किसी किसान के लिए नहीं कर रही है। यह सिर्फ और सिर्फ मोदी का विरोध है। वरना यही बातें इनके 2018-2019 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं होता। मोदी से नफरत तो समझ आती है, पर उसके लिए किसानों को दांव पर क्यों लगा रहे हो? खैर, यह जनता है न, वो सब जानती है और समय पर इलाज भी करती है। Meanwhile, in another news regarding the CAA protests, the Guwahati High Court, while rejecting the bail plea of a peasant leader Akhil Gogoi on Thursday, upheld the verdict of a special NIA court and ruled that the anti-CAA protests in the state of Assam, led by him in 2019, were not in line of non-violent satyagraha but squarely falls within the definition of terrorist act defined in the Unlawful Activities Prevention Act. Or Prime Minister Modi, addressing the Pravasi Bharatiya Divas meeting, said that in the corona era today, India is among the countries with the lowest mortality and highest recovery rate in the world. Today, India is ready to protect humanity with not 1 but 2 made in India corona vaccines. अब अपडेट बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड का। इन माई लास्ट एपिसोड आई हैड मेंशन्ड अबाउट द मूव्स ऑफ द सीबीआई, जो एक वाटर टाइट केस बनाने में जुटी है। एवरीथिंग इज ऑन द प्लेट एंड बीइंग कंसिडर्ड। ऑल कंसर्न्ड हैव बीन क्वेश्चन्ड एंड डिजिटल एविडेंस क्रिएशन के आधार पर केस का काम चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत वॉज इनोसेंट, a good human being, says the Bombay High Court on plea by his sisters. यह वाक्य बहुत कुछ बयां करता है। समय लगेगा पर न्याय जरूर मिलेगा। अब चलें धरती के स्वर्ग कश्मीर की ओर। पिछले एपिसोड्स में हमने चर्चा किया था महामहेश्वर आचार्य अभिनय गुप्त का। आज का कश्मीर का अध्याय कश्मीर की सुंदरता, हिंदू मुसलमानों का विरोध, किसी प्रतापी राजा का राज्य, किसी अयोग्य शासक की असफलता को बयान नहीं करेगा। आज का अध्याय केंद्रित होगा देवाधिदेव महादेव पर,
विभिन्न शैव मत पर, जैसा कि पहले ही एपिसोड में मैंने कहा था कि कश्मीर का शैव मत सारे भारत वर्ष के धार्मिक और आध्यात्मिक जगत में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। तो हर किसी को जानना चाहिए कि वो शैव मत आखिर होता क्या है और शैव संप्रदाय कौन कौन से हैं। आज हम चर्चा करेंगे देवाधिदेव महादेव की, जिनकी चर्चा से, भक्ति से, श्रवण करने से व्यक्ति धन्य हो जाता है। महादेव जो भारत के प्रत्येक हिंदू के मन में बसे हुए हैं, क्योंकि वह आर्यों के भी देवता हैं और अनार्यों के भी देवता हैं। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार महादेव की आराधना का प्रचलन आर्यों के आगमन से भी पहले से ही भारतवर्ष में प्रचलित था। हड़प्पा में सिर्फ 2 देवताओं की मूर्तियां मिली, एक पशुपतिनाथ की और दूसरी मातृदेवी की। पशुपतिनाथ ध्यान मुद्रा में अवस्थित हैं और उनके चारों तरफ पशु, पक्षी और मानव निशंक भाव से इधर उधर है। मानव की भी गणना पशुओं में ही होती है, क्योंकि सृष्टि के विकास क्रम में वह भी पशु का ही एक विकसित रूप है और जब तक उसका पशु भाव खत्म नहीं हो जाता वह पशु ही रहता है। इसलिए सभी पशुओं के नाथ को पशुपतिनाथ कहते हैं। दूसरी मूर्ति मातृदेवी के है, जिनके गर्भ से अंकुर निकल रहा है। अंकुर जो जीवन का आदि स्वरूप है। महादेव को देवताओं का आदि देव कहा गया है। वैष्णव और शाक्त से इस मत के मानने वालों की संख्या अधिक है। शिव का शाब्दिक अर्थ है शुभ, मंगल, कल्याण करने वाला, श्रेयस्कर। शैव मत का मूल रूप ऋग्वेद में मिलता है। रुद्र के रूप की अभिव्यक्ति वर्षा के पूर्व जो तूफान या झंझावात का भयंकर और संहारकारी रूप होता है, प्रकृति के उसी रूप से लिया गया है। झंझावात या तूफान के बाद जब अमृत समान जल बरसता है, जो जीवन का प्रतीक है, उससे शिव के सौम्य रूप की कल्पना की गई है। इसी प्रकृति पूजा से शिव की आराधना प्रारंभ हुई और समय के साथ साथ विकसित होती गई। हमारा हिंदू धर्म सबसे आलोचनात्मक धर्म है। इसे ईश्वर संबंधी निंदा करने की पूरी छूट है। इसलिए हर देवी देवताओं के विषय में भी भरपूर आलोचना सुनने को मिलती है, खासकर त्रिदेवों के विषय में। महादेव भी अक्सर आलोचना के विषय रहे हैं। इन्हें भांग खाने वाला, औघड़, कुरूप, सांपों के संग रहने वाला, शीघ्र क्रोधित होने वाला आदि आदि कहा जाता रहा है। और उनके भक्त कहे जाने वाले धर्मांध बिना महादेव के जाने, बिना किसी साधन के गांजा भांग का सेवन करते हैं और अपने आप को महादेव का भक्त कहते हैं। यह धारणा संभवतः इस कारण से आई होगी कि शिव अनार्यों के देवता होने के कारण लोग उन्हें उसी जीवन शैली का समझने लगे होंगे। उस समय अनार्यों में भांग गांजा का प्रचलन रहा होगा और आर्यों में सोमरस का। इसलिए लोगों में यह धारणा बन गई होगी कि महादेव इन सब के सेवन से प्रसन्न होते हैं और वैसे भी जिसे जो अच्छा लगता है वह अपने इष्ट को वही अर्पित करता है। और रुद्र के प्रलयकारी स्वरूप का धीरे धीरे उसके भक्तों ने अपने अपने समाज और पहिरन, पोशाक और स्वभाव का रूप बना दिया। फिर यह भी देखा गया कि गांजा से शरीर और तंत्रिकाओं को कोमल कर देने की क्षमता है और चाहे थोड़ी ही देर के लिए मन एकाग्र भी आसानी से हो जाता है और ध्यान करने में आसानी होती है। और अधिकांश लोगों ने शिव के तप का, साधना का मार्ग छोड़कर यही मार्ग अपना लिया। शिव को आदि गुरु भी कहा जाता है और शिव आज भी गुरु हैं, ऐसा अनेकों बार प्रचार में देखा गया है। पर शिव भांग गांजा खिलाना सिखाने वाले गुरु नहीं हैं। आदि गुरु उन्हें इसलिए कहा जाता है कि धरती पर सबसे पहले शिव ने नर्मदा नदी के किनारे 7 सनत कुमारों सनद, सनत, सनंदन को योग की शिक्षा दी थी। इसलिए उन्हें महायोगी, सदा योगी या आदि गुरु कहा जाता है। नाट्य शास्त्र के वो पहले प्रणेता है और नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों को पहली बार प्रयोग किया गया था, इसलिए उन्हें नटराज कहते हैं। आयुर्वेद उन्हीं से निश्चित हुआ, इसलिए उन्हें वैद्यनाथ कहा जाता है। उनके चरित्र में काम या वासना का कोई स्थान नहीं है, इसलिए उन्हें काम दहन कहा जाता है। संसार के प्रथम व्याकरण प्रमुख भाषा तमिल का आविष्कार महादेव ने ही किया था। कापालिक या तांत्रिक
जो शैव मत की एक प्रमुख शाखा है, वह तंत्र विद्या शिव के मुख से ही निकली है, जो उन्होंने पार्वती को सिखाई थी। और महान अद्वैतवादी शंकराचार्य के अनुसार तंत्र, जिनकी संख्या 1,00,000 के करीब है, सभी आध्यात्मिक उत्थान में सहायक है। जॉन वुडरफ ने तंत्र सीखकर उस पर एक प्रसिद्ध किताब लिखी है, कुलार्नव तंत्र। यह मिले तो जरूर पढ़ें। तंत्र निषिद्ध वस्तु है, यह धारणा दूर हो जाएगी। सामवेद की ऋचाओं को स्वरबद्ध करने का काम महादेव ने ही किया था, इसलिए उन्हें तनुनाद कहा जाता है। कहां तक बयान हो महादेव का, वे बयान और परिचय के मोहताज नहीं है। हम उनके गुणों का वर्णन करके अपने को धन्य समझते हैं। विष्णु के तरह वे ऐश्वर्य के देवता नहीं है, वे वैराग्य और अपरिग्रह, रिनाउंसमेंट के देवता है। सारा देवत्व और सारी मानवता जब समुद्र मंथन में अमृत खोज रही थी, उन्होंने सबसे भयंकर विष कालकूट पीना पसंद किया। विष पीने का आध्यात्मिक अर्थ होता है संसार की सारी बुराइयों को पी जाना, यानी बुराइयों को भी अपने शरण में लेना। हां, बशर्ते कि हम उसकी शरणागत में हो। प्रारंभ से ही वैष्णव मत का प्रमुख प्रतिद्वंदी शैव मत रहा है। दक्षिण में जैन और बौद्ध धर्म का प्रतिद्वंदी होने के कारण इसे बहुत प्रधानता मिली। डॉक्टर पोप ने शैव मत पर बहुत काम किया है और उनके अनुसार यह मत अत्यंत परिष्कृत और प्रभावशाली और अपनी गहनता के कारण समस्त धार्मिक संप्रदायों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह आंतरिक रूप में इसका हर विभाग मूल्यवान है। इस मत के अनुसार शिव सर्वोपरि है और अम्बा या महाकाली उनकी पत्नी है। सब चेतन और जड़ वस्तुएं उनका शरीर है। सर्वोपरि यथार्थ सत्ता को ही शैव मत में शिव कहा जाता है। वह अनादि, अजन्मा, निर्दोष एवं सब कार्यों का कर्ता और सर्वज्ञ है, जो जीवन पर्यंत जीव की देखभाल और पोषण करते हैं और मृत्यु के बाद भी आत्मा उन्हीं के शासन के अधीन रहता है। इसलिए उन्हें काल या महाकाल भी कहा जाता है। यह वही सर्वज्ञ है जो जीवात्माओं को बंधन से मुक्ति दिलाता है। शिव नित्य स्थायी है, क्योंकि वह काल द्वारा आबद्ध नहीं है। जो विष्णु की साधना करते हैं और उनकी साधना में आगे बढ़ते जाते हैं, तो उन्हें जो शक्ति प्राप्त होती है उसे वैष्णव लादिनी शक्ति कहते हैं। विष्णु जो संसार के पालन करता है, उनकी शक्ति राधा है। और ठीक उसी तरह शैव मत में जब शिव कर्ता भाव से ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, तो वह शक्ति जड़ न होकर चेतना में परिवर्तित होती है और वही ईश्वर का स्वरूप होता है। जीव की वही चैतन्य शक्ति जब जागृत होती है, तब उसी शक्ति का नाम कुंडलिनी जागृत होना कहा जाता है। यह कुंडलिनी शिव के चैतन्य का स्वरूप है, यही शिव का जागृत रूप है और इसकी अधिष्ठात्री शैव मत में दुर्गा या काली है। शिव का अस्तित्व सृजन, धारण तथा विश्व के विनाश और तिरोधन, मर्ज करने में, हो जाना और मोक्ष की प्रक्रिया से कार्य करती है। शिवत्व निष्फल है, अर्थात यह समस्त चैतन्य, कॉन्शियस और क्रिया यानी मटेरियलिज्म का आधार है। जब शुद्ध माया यानी मंडेन वर्ल्ड क्रियाशील हो जाती है, तो शिव अधिष्ठाता न होकर स्वयं भोक्ता बन जाता है। वही सदाशिव हमारा शिव है और वही शुद्ध चैतन्य है और जीवों के कर्मों का हिसाब रखता है। शिव संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय की तरह जगत के भ्रांतिमय या इल्यूजनरी सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। संसार प्रकृति और आत्माओं से मिलकर बना है और दोनों ही नित्य यानी सत्य है। संसार की पृष्ठभूमि में एक गंभीर आशय छिपा है, इसलिए संसार को मिथ्या या तुच्छ भी नहीं समझना चाहिए। शिव विज्ञान बोध में यह लिखा गया है कि शिव की अभिलाषा यही रहती है कि सब उसे जाने। मैकेंडर का शिव मत के बारे में कहना है कि केवल मनुष्य ही की महत्वाकांक्षा ईश्वर को जानने की रही, वरन शिव की इच्छा भी यह रहती है कि निम्न चेतना जब ऊपर उठने के लिए संघर्षरत होती है, तो उच्च चेतना भी इसमें सहयोग करती है और साधक का उद्धतीकरण यानी सब्लिमेशन होता है। पाप एक प्रकार का बंधन है, जिस बंधन से देर सबेर हर कोई मुक्त होना चाहता है। मानव जाति अभी भी विकास क्रम में है और ज्यों-ज्यों इसका विकास होता जाएगा, वह अपनी आंतरिक शक्ति को भौतिक शक्ति की तरह विकसित करेगा और यही उसकी चरम नियति है। आज के एपिसोड को लंबा नहीं करते हुए हम यही शेष करते हैं।
और अगले अंक में शैव मत के बारे में चर्चा करेंगे और कश्मीर के शैव मत को जानेंगे। रुद्रो यत्रो दक्षिण मुखम तैन मां पहिम नित्यम। रुद्र हमारे अनुकूल हो, हमारे वाम पक्ष में रहकर दक्षिण पक्ष में विराजमान हो और हम उनके सानिध्य में रहें। आज के लिए शैव मत के बारे में इतना ही। अब बात 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी की, मेरी पार्टी की। मेरी पार्टी की विशेषता है कि इसके साइन बोर्ड पर अंदरूनी तौर पर लिखा है हम नहीं सुधरेंगे, और इसको अंजाम दे रहे हैं पप्पू और पिंकी की जोड़ी। पार्टी धरातल में पहुंच चुकी है, पर तेवर ऐसे कि ये दुनिया के बादशाह हैं और ये महात्मा गांधी के सच्चे भक्त हैं, और इनकी इच्छा, उनकी इच्छा, कांग्रेस पार्टी शुड बी डिसबैंडेड आफ्टर इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस को पूरी करने में जोशो खरोश से लगे हैं। बट कैन इंडिया अफोर्ड इट नाउ? आई हैव बीन टेलिंग इन ऑल माई एपिसोड्स that India needs a very strong national opposition political party, and therefore it is the need of the hour to remove, impeach, whatever vocabulary one may use, from the helms of affairs of the oldest party in India, these fake Gandhis. The party must come under a new management. आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कश्मीर के आगे के इतिहास की, कांग्रेस पार्टी के कहानी की, कांग्रेस पार्टी के भविष्य की। क्या होगा देश की सबसे पुरानी पार्टी का? जानेंगे अमेरिकी चुनाव के नतीजों के बाद आगे क्या हुआ, भारत अमेरिका के रिश्तों की कई और तथ्यों के साथ आऊंगा और मिल बैठकर चर्चा करेंगे आपके अपने प्रोग्राम वीकली टेक्स फ्रॉम न्यूयॉर्क में। हां, अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले एपिसोड की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।